Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Amit Goyal. नमस्कार, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार पुनीत जैन। पुनीत, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद अमित। सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर, तो अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ अर्जुन। GDP growth slows to 5-year low at 5.8% in the fourth quarter of the last fiscal. The growth of 8 core infrastructure sectors slows down to 2.6% in April this year as compared to 4.7% in the same month last year. Benchmark domestic stocks logged modest losses in a highly volatile session. Rupee appreciates 17 paise against US dollar and Brent crude prices declined around 2%. आर्थिक सुर्खियों में, पिछले वित्त वर्ष के चौथी तिमाही में आर्थिक विकास दर 5 वर्षों में सबसे कम 5.8% दर्ज हुई। 8 प्रमुख ढांचागत क्षेत्र की विकास दर अप्रैल के दौरान 4.7% से घटकर 2.6% रह गई। घरेलू शेयर बाजार में उतार चढ़ाव भरे माहौल के बाद मामूली गिरावट, डॉलर के मुकाबले रुपया 17 पैसे मजबूत हुआ और ब्रेंट क्रूड के दामों में 2% की गिरावट दर्ज हुई। In our top story, India's economic growth rate slowed to a 5-year low of 5.8% in the January to March 2018-19 due to poor performance in agriculture and the manufacturing sectors. According to the Central Statistics Office CSO data released today, GDP growth during 2018-19 fiscal stood at 6.8%, lower than 7.2% in the previous financial year. The growth in gross domestic product was slower since 2014-15. The previous low was 6.4% in 2013-14. The fourth quarter growth was below China 6.4%. Puneet, how do you look at these figures of GDP growth for 3 months? And why is it that agriculture has suffered? Manufacturing has, we have discussed earlier about the export market going through a recession, so clearly that has had an impact on what is being manufactured and consumed. But agriculture, why? So Arjun, I must point out that these numbers pertain to the fourth quarter, that is the January-March quarter of this year. And there was anecdotal evidence that economy was slowing down significantly. And when we talk about agricultural growth particularly slowing down, we know that on ground there was this feeling that agrarian crisis was there, and the incomes of in the rural India were not really picking up. Consumption was going down there. So there was this kind of anticipation was there, I would say, that these numbers for the fourth quarter would be slow. Now, if you look at the reasons behind this slowdown, this is a significant number, because 5.8% below 6% for India is a difficult number, because see, we have a population which is growing. So as it is, there is a demographic growth which adds to the economy. So clearly 5.8 or below 6% is really a matter of concern for us. However, we know that in the last quarter of the year, government spending had come down significantly because of course we were running into elections at that point of time. There were fiscal concerns because of core issues in the economy, and therefore I think government was cutting back on expenditure in that quarter to keep the fiscal deficit under control. That was one challenge. Secondly, we knew that global economy was also slowing down. We recently got numbers from US GDP, again showing that the global growth was moderating in that period, and at the same time there was a slowdown in domestic consumption. So clearly all factors, these headwinds were pretty strong. We saw the economy slowing down significantly in January-March quarter, and I think even in the April-May-June quarter, the current quarter, I don't think things are going to pick up very significantly. Now that the new government has come into force, in a sense that although it's a continuing government, but clearly they have a fresh mandate, they have a fresh
ability to take decisions, I think they should now really step on the gas to bring this economy to growth path again. पुनीत, कितनी चिंता की बात है अगर इस तरह की जब आर्थिक विकास दर में जब गिरावट आती है, क्योंकि अगर सिर्फ इस तिमाही की बात ही ना करें, पूरे ओवरऑल अगर पिछले 18-19 के, हालांकि ये आरंभिक आंकड़े हैं, 6.8% की बात कर रही है, जबकि अनुमान था 7.2% का। कितनी चिंता की बात है, कितना चिंतित होना चाहिए, और वो कौन से फौरी उपाय हैं, जिस तरह से आपने कहा कि चूंकि इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भी बहुत ज्यादा तेजी से इसको पार पा पाने की उम्मीद कम है। देखिए, चिंता का विषय तो है। उसका कारण यह है कि यदि हम गरीबी की रेखा से, जो प्रधानमंत्री ने भी अपने भाषण में कहा कि जो उनका एजेंडा है कि लोगों को गरीबी से उबारना और ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को उससे बाहर निकालना, उसके लिए एक ही रास्ता है, वो है कि जीडीपी ग्रोथ। क्योंकि जीडीपी जो है वो आमदनी जो है, लोगों की नेशनल इनकम जो है, और कितनी एक आम आदमी की आमदनी क्या है, उसके ऊपर उसका असर पड़ता है। तो यदि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आए, तो हमें जीडीपी ग्रोथ पर ही ध्यान देना होगा। इकोनॉमी ग्रो करने से ही वो लक्ष्य पूरा हो सकता है। अब आपने कहा कि क्या ऐसे, और ये बात सही है कि जब इकोनॉमी में स्लो डाउन होता है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है भारत की, विश्व की 6ठी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तो उसको टर्न अराउंड करना काफ़ी कठिन है, आसान नहीं है, पर्टिकुलरली क्योंकि हमारे बहुत विस्तृत देश है, बहुत अलग अलग रीजन्स हैं, विविधताओं से भरा हुआ देश है, विविधता से भरा, तो आसान नहीं है। कोई एक स्टेप उठा करके आप इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टेप अप नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि 3-4 कदम जो सरकार को फौरी तौर पर उठाने पड़ेंगे। आने वाले सप्ताह में 6 जून को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है। मुझे लगता है कि बहुत कारगर कदम, आरबीआई को इफेक्टिव कदम उठाने पड़ेंगे। इंक्रीमेंटल हम देख रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट रेट कट कर रही है आरबीआई, लेकिन उससे कोई वो ट्रांसमिशन नहीं हो पा रहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ग्राउंड पर। मुझे लगता है कि कोई बड़ा कदम आरबीआई को उठाना पड़ेगा। सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहूंगा, लिक्विडिटी जो है वो बिजनेसेस में बहुत कमी है इस वक्त, और बिजनेसेस को चाहिए कि उनके हाथ में लिक्विडिटी हो। हमने देखा है एनबीएफसी क्राइसिस, जहां क्राइसिस नहीं था वहां भी एक क्राइसिस जनरेट होने लगा, क्योंकि एनबीएफसी से वो क्राइसिस कॉर्पोरेट्स की बैलेंस शीट, म्यूचुअल फंड्स में गया, म्यूचुअल फंड से वो कॉर्पोरेट्स की बैलेंस शीट में जाने लगा। तो जरूरत है कि सरकार बहुत ही, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सरकार मिलकर के लिक्विडिटी बेटर करे। गवर्नमेंट को जो उनका एक्सपेंडिचर है, यानी जो गवर्नमेंट इस वक्त प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत कम है, और कॉन्फिडेंस नहीं है एक आम आदमी में या प्राइवेट सेक्टर में कि वो इन्वेस्टमेंट कर सकें बड़े तौर पर। इसलिए ऐसे टाइम में सरकार को ही ये रोल प्ले करना पड़ता है। वेल एस्टैब्लिश्ड इकोनॉमिक नॉर्म है कि जब भी इकोनॉमी स्लो डाउन होती है, गवर्नमेंट हैज टू लीड विद लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो मुझे लगता है कि सरकार को अपनी इन्वेस्टमेंट्स को स्टेप अप करना पड़ेगा, और जल्दी करना पड़ेगा। दे कांट वेट कि हम नीति बनाएंगे और एक्सपेंडिचर करेंगे। मुझे लगता है सरकार को जल्दी ही वो कदम उठाने पड़ेगा। तो ये माना जाए कि सबसे पहले जो ढांचागत क्षेत्र है, कहीं ना कहीं उस पर सरकार को ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और जिस तरह की आपने भी कहा कि रिजर्व बैंक की जो मौद्रिक नीति जो आने वाले सप्ताह में आएगी, उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि उद्योग जगत को एक बेहतर रेट पर पैसा दिलवाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं उनकी जो तरलता की बात करी, लिक्विडिटी की बात करी है, अगर ये दोनों कदम सरकार उठा लेती है, तो शायद सीधे तौर पे आप ये कहेंगे कि क्या रोजगार और आर्थिक विकास दर दोनों एक साथ से सुधार की तरफ बढ़ सकेंगे। बिल्कुल, देखिए, तभी हमें, जो मैंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन और गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए प्राइवेट सेक्टर के लिए लिक्विडिटी का बहुत बड़ा कदम है, जो एक ज़रूरत है इस वक्त, और कॉन्फिडेंस चाहिए प्राइवेट सेक्टर को, जिससे कि वो इन्वेस्ट कर सके। सरकार के पास एक बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि नया बजट, इस वित्त वर्ष का जो बजट है वो कुछ हद तक जो पेश किया था वो पूरा नहीं था, वो सिर्फ एक तरह से वोटर अकाउंट था। और नई नीतियाँ, नए डायरेक्शंस इकोनॉमी की अब सरकार निर्धारित कर सकती है नए बजट में। मुझे लगता है बहुत बड़ा कदम है, और सरकार को आने वाले 5 वर्षों के लिए एक बजट को सिर्फ हम ये ना देखें कि एक वर्ष के लिए क्या टैक्सेस रहेंगे या क्या इनकम और एक्सपेंडिचर होगा सरकार का। मुझे लगता है सरकार को आने वाले 5 वर्षों में अपनी नीति को साफ करना पड़ेगा, और ये जाहिर करना पड़ेगा कि वो किस प्रकार से भारत में ग्रोथ चाहती है। ये विकास दर में जो गिरावट आई, क्या ऐसा मानते हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी बहुत ज्यादा आर्थिक गतिविधियां तेजी नहीं थी, तो क्या मानते हैं कि क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो आर्थिक गतिविधियों में चूंकि कहीं ना कहीं
मंदी की बात हो रही थी, उसका भी असर भारतीय अर्थव्यवस्था पे सीधे तौर पे पड़ा है? देखिए बिल्कुल, जो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट है उसमें एक डेफिनेटली स्लो डाउन है, और जब ऐसा होता है तो एक हेडविंड जिसे हम कहते हैं वो जरूर भारत के सामने है, लेकिन साथ ही हमें डोमेस्टिक कंजम्पशन, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट पर भी ध्यान देना चाहिए. So you're talking about Keynesian economics where government expenditure has to go up so that investment and consumption goes up. Absolutely. So Keynes had spelled out very clearly that whenever such slowdowns come into the economy, government has to step up first, because private consumption lags and because of lower confidence. So I think government has to play a significant role in pushing investments and consumption. अप्रैल के दौरान 8 प्रमुख ढांचागत क्षेत्र की विकास दर गिरकर 2.6% रह गई. कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और उर्वरक की वृद्धि दर में गिरावट से विकास दर में कमी आई. सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष अप्रैल के दौरान 8 ढांचागत क्षेत्र की विकास दर 4.7% रही थी. इन क्षेत्रों में कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली शामिल हैं. अप्रैल के दौरान कोयला उत्पादन 2.8% की पूर्व दर पर बरकरार रहा. बिजली का उत्पादन 5.8%, जबकि रिफाइनरी उत्पाद 4.4% रहा. कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस और उर्वरक क्षेत्र में इस दौरान गिरावट रही. औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में इन क्षेत्रों की हिस्सेदारी लगभग 41% है. अगर कहीं पे भी जो आप माने कि आईआईपी में 41% का जो भारी भरकम एक तरीके से हिस्सेदारी है, उस क्षेत्र की जो विकास दर है तकरीबन आधी रह जाए, तो कहीं ना कहीं इसका, जैसे कि अभी पिछली हमने जो जीडीपी की भी विकास दर पे देखा उसका पे भी असर आया, तो एक स्वाभाविक सी बात थी. अब इन सब चीजों के लिए सरकार, फिर से वही मेरा पुराना सवाल आएगा कि सरकार को वो फौरी कदम कौन से उठाने चाहिए जिससे कि ये सारे क्षेत्र में कहीं ना कहीं विकास हो, जिससे रोजगार भी बढ़े और एक आम आदमी की जो जरूरतें हैं वो भी आसानी से पूरी हों. देखिए, जैसा हमने पहले भी बात करी कि फर्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल, अर्जुन ने कहा कि जॉन कीन्स ने, इनफैक्ट 1929 जब ग्रेट डिप्रेशन आया अमेरिका में, तो जॉन कीन्स ने ये पहली बार इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आया जिसको हम पिछले करीब करीब 100 वर्षों से उसको फॉलो कर रहे हैं अब, कि गवर्नमेंट को, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि यदि सरकार के पास कोई और काम ना हो तो वो गड्ढे खोदें, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें, फिर गड्ढे भर दें. और नेचुरली ये उनका एक बहुत ही मॉनेटरी स्टिमुलस, और अगर आप देखें तो जो मॉनेटरी पॉलिसी रही है अमेरिका की पिछले 100 वर्षों में वो यही रही है, मॉनेटरी स्टिमुलस की. तो मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट के पास पहला, गवर्नमेंट इज द पोर्ट ऑफ कॉल, कि वो पहले इन्वेस्टमेंट कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, एक्सपेंडिचर बढ़ा के, ताकि जो आम जनता है उसकी इनकम बढ़े और कंजम्पशन उससे बढ़ेगी. कुछ हद तक जैसे सरकार की कंजम्पशन है, इसी तरह से कुछ कारगर कदम उठाने पड़ेंगे प्राइवेट कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट के लिए. मैं ये कहूँगा सबसे पहला कदम एक उदार मॉनेटरी पॉलिसी रिजर्व बैंक के द्वारा, और इंटरेस्ट रेट्स में सिग्निफिकेंट कट. ये छोटा मोटा जो कट हम देखते हैं 20 बेसिस पॉइंट, 25 बेसिस पॉइंट, उससे शायद कुछ नहीं होगा. मुझे ऐसा लगता है कि 6 जून को हम एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक बहुत ही जबरदस्त मॉनेटरी पॉलिसी देखेंगे. And just speaking about productivity within the economy, how does the government facilitate the creation of markets? Because the overseas market, we are seeing the trade war right now, and there doesn't seem to be any negotiation on a proper agreement. So you're looking at the domestic market once again. China is doing the same. They have other initiatives as well. But what would be now the strategy employed by the policymakers in India to ensure that the market gives you, the domestic market gives you that dividend, portfolios are being assigned? So what is the next step for Government of India? So Arjun, you raised the correct context of this so-called consumption and investment theory, that the government has to ensure that no key areas they start functioning quickly. It's not easy because it's such a large economy. It's very difficult to move the liquidity. RBI has been cutting rates, but we've seen the transmission does not take place because of various challenges in the economy. I think right now the government has to ensure that the confidence goes up, and that will come largely from domestic markets. See, we can't expect that exports will pick up, because we know the global economy is slowing down. It's unlikely that exports will pick up very significantly for India.
And India has a very large population which is capable of consuming goods and services. We have seen four-wheeler sales go down. We have seen two-wheeler sales go down. So definitely there's scope for improving domestic consumption. And I think we should, as a strategy, focus on boosting our domestic consumption rather than looking at exports as the engine of growth. Exports, of course, provide us some opportunity, but I think the focus has to be on boosting domestic consumption rather than looking at global markets. No, so I think there's scope for Indian markets here. इसके साथ साथ जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कल बिम्स्टेक देशों के राष्ट्र प्रमुखों को बुलाया, क्या ये माना जाए क्योंकि अपने आसपास के जो क्षेत्र के जो देश हैं उसमें इस तरह की अगर हमको अपनी खपत बढ़ानी हो या कहीं ना कहीं बाजार विकसित करना हो तो इन देशों से फौरी तौर पर त्वरित और तुरंत कहीं ना कहीं हमको फायदा या लाभ मिल सकता है। अमित देखिए, ये तो बहुत अच्छा स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है। इनफैक्ट बिकॉज अगेन इकोनॉमी, जो हम ग्लोबल इकोनॉमी की बात करते हैं या अपने इमीडिएट इकोनॉमिक रिलेशंस की बात करते हैं, और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स, ये दोनों बहुत ही जुड़े हुए कदम हैं। तो हमें स्ट्रेटेजिकली जो बिम्स्टेक, बिकॉज सार्क जो था वो एक होस्टेज बन गया था एक प्रकार से एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट, वेस्टर्न इंटरेस्ट का। तो भारतीय सरकार ने स्ट्रेटेजिक उसके अफेयर्स के नाते उन्होंने इसको बड़ा बिम्स्टेक का जो नया ग्रुपिंग क्रिएट करी। और मुझे लगता है कि जो हम मार्केट्स की बात करते हैं, कंजम्पशन की बात करते हैं, वो भी ये जो ग्रुप है बहुत ही भारत के करीब है, हमारे स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट के बहुत करीब है। डेफिनेटली इट ऑफर्स अस वेरी गुड मार्केट। लेकिन मैं फिर यही कहूंगा कि देखिए, ये जो मार्केट्स हैं, हमारी इतनी बड़ी इकोनॉमी जो भारत की है उसके इंजन ऑफ ग्रोथ नहीं हो सकते। हमें डोमेस्टिक कंजम्पशन, डोमेस्टिक फैक्टर्स पर ध्यान देना पड़ेगा मुख्यतः, और जो ग्रोथ है वो डोमेस्टिक मार्केट से आएगी। दो सवाल सीधे सीधे, क्या सरकार का ढांचागत क्षेत्र में या सरकार का जो आम जन सुविधाओं पर खर्चा है जो पिछले कुछ माह से रुका हुआ था, क्या उस पर हम फौरी तौर पे एक बहुत तेज कार्रवाई या बहुत तेजी की उम्मीद कर सकते हैं? नंबर एक। दूसरी तरफ जिस तरह की आपने बात करी कि उद्योग जगत को कम ब्याज दर पर जो पैसा मुहैया कराने की बात थी, क्या उस पे निर्णय तुरंत हो सकेगा? देखिए, मुझे कोई शक नहीं है कि सरकार अपना एक्सपेंडिचर, जो स्लो डाउन हमने देखा था लास्ट क्वार्टर में, मतलब जनवरी मार्च क्वार्टर में, और अभी तक जो इस क्वार्टर में रहा है, उसको रिवर्स करेगी। लेकिन देखिए, ट्रांसमिशन ऑफ एक्सपेंडिचर में बहुत टाइम लगता है। सरकार जब पैसा खर्च करना शुरू करती है और जब वो जनता के हाथ में आता है, उसमें कई महीने लग जाते हैं उस पैसे में। तो उसमें मुझे बहुत उम्मीद नहीं है कि बहुत ज्यादा उसमें, हालांकि सरकार तेजी से काम करेगी, पर वो असर आने में ग्राउंड में उसमें टाइम लगेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हमने इंटरेस्ट कट की बात करी या मॉनेटरी स्टिमुलस की बात करी, वहां भी कई महीने लगते हैं सरकार उसका असर आने में बाजारों में। मुझे लगता है कि उससे पहले सरकार को साथ साथ अपनी जो नीतियां हैं वो साफ करनी होंगी कि क्या नीति रहेंगी सरकार की, और कैसे वो ग्रोथ को आगे आने वाले समय में कैसे बूस्ट करेंगे, क्योंकि इससे जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है वो मेरे ख्याल से सरकार की नीतियों से कॉन्फिडेंस बनेगा। नजर डाल लेते शेयर बाजार पर। मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 0.3% की गिरावट से 118 अंक गिरकर 39,714 के स्तर पर बंद हुआ। उतार चढ़ाव भरे सत्र के दौरान सेंसेक्स में आज 750 अंक तक की बढ़त का दायरा भी देखा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.2% के नुकसान से 23 अंक गिरकर 11,923 के स्तर पर बंद हुआ। बीएसई मिड कैप सूचकांक में 0.2% की बढ़त रही, जबकि स्मॉल कैप सूचकांक में 0.7% की गिरावट भी दर्ज हुई। In a highly volatile session, the benchmark domestic indices today fell, led by losses mainly in auto and financial stocks. After gyrating nearly 750 points, the 30-share index settled 118 points, or 0.3%, lower at 39,714. The broader NSE Nifty also settled lower by 23 points, or 0.19%, at 11,923. The BSE Mid-Cap Index rose 0.23%. The BSE Small-Cap Index fell 0.65%. The market breadth was weak on the BSE. 1,024 shares rose and 1,559 shares fell. A total of 154 shares were unchanged. Yes Bank was the top loser in the Sensex pack, falling 4.3%. Other losers include ITC, Vedanta and Mahindra, shedding up to 3.6%. Asian Paints, TCS and HCL Tech were among the gainers, rising up to 2.4%. Among the sectoral indices on the BSE, power ended down 1.3%, metal was down 1.1%, and fast-moving consumer goods, FMCG, fell 1%. While information technology index ended up 1.2%, tech index was up 1.1%, and oil and gas index gained 0.9%.
Investors also appeared cautious ahead of GDP data scheduled for release later in the day, traders said. However, on a weekly basis, the Sensex gained 279.4 points and the Nifty rose 78.7 points. Puneet, highly volatile session today. The volatility index VIX jumped as much as 3.3%. What is this telling you about the market? Is it politically related, or are there economic and financial reasons? So Arjun, this month, in fact, today was the last day technically of this month. So this month has been a very volatile month for the markets. Very uncertain, lot of uncertainty, lot of concerns. Earlier because of election related, then because of which even today markets were kind of on tenterhooks because who would be the finance minister, what will be the portfolios allocated to various ministers. All these concerns are playing into the market. I think and we have these major events coming up, which is RBI policy next week, and then immediately after that, within next 2-3 weeks, we'll have another full budget. So actually, we are now in the pre-budget kind of a mode. Usually, markets see some gains in this period, but I think because of volatility, because of a lot of concerns around global issues, markets are somewhat nervous. Also, we must remember that markets have already risen a lot. We are almost at all-time high levels now. So clearly, there is a lot of caution in the air, and whenever there is uncertainty or there is this feeling of tentativeness, I would say, in this market, then markets are jittery, like we saw today. They went up and went down, and there's a lot of volatility. I think next 2-3 weeks are going to be very kind of cautious weeks for the markets. I don't see a big rally coming up. I don't see a big fall. I think markets are going to be very range-bound, narrow, and consolidating at the current levels. पुनीत, दो चीजें, सेंसेक्स और निफ्टी 40,000 और तकरीबन 12,000 बहुत ऊंचाई पर है. इसके पीछे क्या ये माना जाए, ये कि सिर्फ स्पेकुलेशन है या कोई बनावटी चीज है, या वाकई में सरकार की नीतियों पर बाजार का एक बहुत बड़ा भरोसा है जिसको कायम रखना शायद बहुत आसान भी है और शायद सरकार उस पर खरी भी उतरेगी. दूसरा, हमारी जो अर्थव्यवस्था की स्थिति है उसमें इतना दमखम है कि फौरी तौर पे जिस तरह की अभी हमने पिछले कुछ खबरें पढ़ी जिसमें कि कमी आई है, उससे बहुत जल्दी पार पा पाएगी. देखिए, सेंसेक्स और निफ्टी जो अपने ऑल टाइम लेवल पर है और 12,000 के आंकड़े के आसपास निफ्टी है, 40,000 के आसपास सेंसेक्स है, ये मैं देखिए बहुत नैरो मार्केट की वजह से ये सेंसेक्स है. यदि हम ब्रॉडर मार्केट को देखें तो वहां पर शेयर्स के जो दाम है या स्टॉक्स के दाम है वो काफी नीचे आए हुए हैं, और मैं ये नहीं कहूँगा कि ब्रॉडर मार्केट में कोई कॉन्फिडेंस है बहुत ज़्यादा. ये बात सही है कि भारत में पिछले दिनों बिकॉज ऑफ म्यूचुअल फंड्स के जो फ्लोज हैं वो बहुत स्ट्रांग रहे, और वो पैसा जो है बहुत ही लिमिटेड स्टॉक्स में, जो चुनिंदा 8 या 10 स्टॉक्स हैं टॉप, उसमें जाते हैं, और वही सेंसेक्स या निफ्टी के इंडेक्स के ऊपर असर पड़ता है. तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि सिर्फ सेंसेक्स या निफ्टी को देखकर हम ब्रॉडर इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था का आंकलन या उसका इवैल्यूएशन नहीं कर सकते. जैसे हमने देखा कि काफ़ी कंसर्न्स हैं जीडीपी को लेकर, ग्रोथ को लेकर, इंटरेस्ट रेट्स को, लिक्विडिटी को लेकर. तो अभी ये इसलिए हम ये कंफर्ट नहीं ले सकते कि इंडेक्स ऑल टाइम हाई है तो हम कंफर्ट लें कि इकोनॉमी की हालत अच्छी है. ऐसा नहीं है. देयर आर चैलेंजेस बिफोर द इकोनॉमी. तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इंडेक्स लेवल्स डेफिनेटली मेंटेन होंगे बिकॉज ऑफ फंड फ्लोज, पर लार्जर इकोनॉमिक चैलेंजेस विल बी बिफोर अस इन नेक्स्ट मंथ और सो. अंतर बैंकिंग मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 17 पैसे की मजबूती से 69 रुपए 70 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुए. ये भी शायद कहीं ना कहीं एक अच्छी या उम्मीद भरी खबर तो जगाता ही है कि रुपया जो है वो में एक तकरीबन स्थायित्व बना हुआ है 70 रुपए प्रति डॉलर के आसपास. नहीं, डेफिनेटली मैं ये कहूंगा कि भारत की जो मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो काफी अच्छी है. पिछले दिनों ऑयल के प्राइसेस भी काफी गिरे हैं और उसके चलते भी रुपए में बढ़त आई है. तो ये अच्छा एक सपोर्टिंग फैक्टर जरूर है. नजर डाल लेते हैं एशियाई शेयर बाजार पर. एशियाई बाजारों में आमतौर पर गिरावट का दौर रहा. अमेरिका द्वारा मैक्सिको से होने वाले आयात पर अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने की अप्रत्याशित घोषणा से बाजार में गिरावट रही. जापान का निक्केई 1.6%, हांगकांग का हैंगसेंग और सिंगापुर के स्ट्रेट टाइम्स इंडेक्स में 0.8% का नुकसान रहा. चीन के शंघाई कंपोजिट सूचकांक में 0.2% और दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.1% की गिरावट रही. उधर यूरोपीय बाजारों के शुरुआती रुझानों में भी मंदी रही. लंदन, फ्रांस और जर्मनी के शेयर सूचकांक कारोबार के दौरान 1% से 1.7% तक की गिरावट के दायरे में रहे.
Moving on to the US market, the US stocks rose marginally yesterday as President Donald Trump said trade talks with China were going well, offering a glimmer of hope to markets roiled by worries that a protracted dispute would slow economic growth. The escalating dispute has weighed heavily on Wall Street this month, putting its main indices on track for losses of more than 5% in May. The benchmark S&P 500 is now 5.9% away from its all-time high on the 1st of this month. The Dow Jones Industrial Average and the S&P 500 gained 0.2%, and the Nasdaq Composite Index added 0.3%. Just briefly, what are your observations on Trump policies? We know you've spoken about China, about his reaction towards India as well. Now Mexico, is he successful in relocating manufacturing units away from these offshore outsourcing destinations back to America? Arjun, I think jury is still out on that, because we now seen that the Trump administration is really stepping on the steps they were talking about, bringing in tariffs on China. So there's a full-blown kind of trade war now with China, and he's put tariffs, and they were not anticipated. This Mexico tariffs came out of the blue really, and markets were really taken by surprise. Of course, the U.S. economy is still doing well, because it's but I think it's a lot of tailwinds which were there in the US economy. Now it is significantly slowing down. We might see GDP growth coming below 3% in US now. But given the fact that US has enormous clout on the global stage, particularly because the US dollar has become very strong lately. It has become strong in terms of not only value, but in terms of the impact it has on our global financial system. So I think President Trump is using it, this strength, to some extent. We don't still know what will be the long-term implications of all these steps. Do you think this is a political move to win the elections again, or are there real economic reasons for bringing employment back to US? See, the US has the historically low employment rate right now. They have good GDP growth. So I don't see the reason for Trump to disrupt this economic system. So I think it appears to be more of a political move rather than economic move. Well, let's have a look at the oil market now. Oil was on track for its biggest monthly drop in 6 months today as US President Donald Trump ramped up trade tensions, weighing on the demand outlook. Brent crude futures lost around 2%. It was trading around $65, while US crude futures were at $55.30 per barrel. Is this a strategy by the US to increase the prices of their shale exports to other parts of the world? Is this what President Trump doing to the oil market right now? So US is trying to capture a larger share of the global oil market. And of course, if you see the differential between Brent oil and NYMEX, you see the differential is now at a historically high 20% of the NYMEX price. So clearly, US is trying to be a very major player, major exporter. For many years, US did not export its oil, in fact, for many decades. And only recently they started exporting oil to the global market. I think the US is trying to become a big player in the oil market now. And how would they react, those who are already the established big players in the market? So we haven't still, they've reacted by cutting production right now. They're trying to cartelize the markets. But again, see, all these are very long-term kind of steps. And we will know the story or the outcome of the story in next couple of years. So you see India as a beneficiary with lower oil prices in the near to medium term, because the government is looking to balance its budget. It will announce the budget as well. So I think India will surely benefit from this lower oil prices as of now. दिल्ली सराफा बाजार में आज सोना स्टैंडर्ड 300 रुपए की बढ़त से 33,170 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर दर्ज हुआ। चांदी भी 150 रुपए की बढ़त से 37,550 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1,298 प्रति औंस के स्तर पर रहा है, जबकि चांदी $14.61 प्रति औंस के पूर्व स्तर पर बरकरार रही। पुनीत, कार्यक्रम में आने और चर्चा के लिए धन्यवाद। धन्यवाद अमित। और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर। पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में आर्थिक विकास दर 5 वर्षों में सबसे कम 5.8% दर्ज हुई। 8 प्रमुख ढांचागत क्षेत्र की विकास दर अप्रैल के दौरान 4.7% से घटकर 2.6% रह गई। घरेलू शेयर बाजार में उतार चढ़ाव भरे माहौल के बाद मामूली गिरावट, डॉलर के मुकाबले रुपया 17 पैसे मजबूत हुआ और ब्रेंट क्रूड के दामों में 2% तक की गिरावट दर्ज हुई। And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye.